temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. God does so many wonderful things in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत काम करता है Human mind is such that we tend to forget. और मनुष्य का मन तो ऐसा है कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं। So many blessings we have received, हमने बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया है, but we don't remember it. लेकिन हमें वो याद नहीं रहते हैं। Today I want to talk about having an attitude of gratitude towards God. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए सराहना की भावना रखने के बारे में। I want to talk about remembering His blessings in your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में उसकी आशीषों के बारे में स्मरण करते जाना। In Joshua chapter 4, यहोशू अध्याय 4 में from verse 1 to 3, वचन 1 से 3 में हम देखते हैं we find an incident where now the Israelites had wandered 40 years in the wilderness. हमने इस बात को देखा कि अब तक तो यहाँ पर इस्राएली लोग जंगल में 40 साल तक इधर-उधर भटकते जा रहे थे The generation that came out of Egypt all died in the wilderness. और जो पीढ़ी मिस्र में से गुलामी से बाहर निकली थी वो जंगल में ही खत्म हो गई थी। Except Joshua and Caleb. केवल यहोशू और कालेब ही बचे थे। Now the new generation was going to enter the promised land. और अभी जो नई पीढ़ी है वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाली थी So they were going to cross the river Jordan. और वो यर्दन नदी को पार करने वाले थे। And it came to pass, verse 1 of Joshua chapter 4, it came to pass that when all the people were clean passed over Jordan, that the Lord spoke unto Joshua. जब उस सारी जाति के लोग यर्दन के पार उतर चुके तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तब परमेश्वर ने यहोशू से इस तरह से कहा In verse 2, take you 12 men out of the people, out of every tribe, one man. प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर ये आज्ञा दे And command them, saying, take you hence out of the midst of the Jordan, out of the place where the priest's feet have stood firm, 12 stones shall ye carry them over with you, and leave them in the lodging place where you lodge tonight. तुम यर्दन के बीच में जहाँ याजकों ने पाँव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले जाओ और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। Verse 6 says, and this may be a sign among you, that when your children ask you their fathers in time to come, what is the meaning of these stones? वचन 6 कहता है, जिससे ये तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरे और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है तब तुम उन्हें ये उत्तर दो। And then you shall answer them and say, the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord, and when it passed over Jordan, and these stones shall be a memorial unto the children of Israel forever. तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यर्दन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वो यर्दन पार आ रहा था तब यर्दन का जल 2 भाग हो गया, अतः वे पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने के लिए ठहरेंगे। See, God wanted them to remember the things that He has done for them. देखिए परमेश्वर चाहता था कि वो जो परमेश्वर ने उनके लिए किया उन सारे कामों को याद रखते चले जाएं। परमेश्वर की इच्छा He यही want थी। them to forget it. वो नहीं चाहता था कि वो किसी तरह से इसे भूल जाएं, Because the previous time people had forgotten. क्योंकि पिछली बार की बात को लोग भूल चुके थे। They forgot all the great things that God had done for them. परमेश्वर ने उनके लिए जो महान काम किए थे वो सारे काम वो भूल गए थे। God did mighty miracles in Egypt to bring them out of Egypt. परमेश्वर ने मिस्र में से उन्हें बाहर निकालने के लिए मिस्र में महान चमत्कार किए थे। They saw God showing Pharaoh mighty signs to Pharaoh. और उन्होंने ये देखा कि परमेश्वर फिरौन को दिखाने के लिए उसके सामने महान चमत्कार करते जा रहा है। उन्होंने ये सब देखा And they came out victorious out of the land of Egypt. और वो मिस्र देश में से विजयी होकर बाहर निकले, विजयी होकर आए। And when they came to the Red Sea, God parted the Red Sea and they were able to walk on dry land. और जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया और वो सूखी भूमि पर से चलते हुए पार आए। They saw the mighty miracle God did. और उन्होंने परमेश्वर के महान सामर्थी चमत्कारों को देखा। They saw the pillar of cloud every day going before them.
और उन्होंने प्रतिदिन देखा कि बादल का खंबा उनके सामने आगे आगे And चल they रहा saw the है, pillar of fire in the night. और रात के समय उन्होंने अग्नि के खंबे को देखा, They saw God raining food from heaven for them every day. और उन्होंने ये भी देखा कि प्रतिदिन परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग से, आकाश से भोजन बरसाता Bible है, calls it the food of the angels. और बाइबल इसे स्वर्गदूतों का भोजन कहती है, It was called manna. उसे मन्ना कहते हैं। 40 years they had food to eat. And जंगल में 40 साल तक उन्हें भोजन मिलता रहा। God split a rock and gave water out of a hard rock. परमेश्वर ने एक मजबूत चट्टान को विभाजित किया और उस मजबूत चट्टान में से उन्हें पानी दिया। Impossible things God did. परमेश्वर ने उनके लिए असंभव ऐसे काम किए। They saw mighty miracles. और उन्होंने महान सामर्थी चमत्कार They देखे, saw the glory of God coming upon Mount Sinai. और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को सिनै पर्वत के ऊपर आते हुए देखा। 40 days it was burning on that mountain. और 40 दिन तक उस पहाड़ पर बड़ी आग जल रही थी, They heard the voice of the trumpet. और उन्होंने वहां पर तुरही की आवाज भी सुनी All that थी, they had seen. और ये सब देखा था। But the Bible says they forgot everything. लेकिन बाइबल कहती है कि वो सब कुछ भूल गए। We will see that in Psalms chapter 78 and verse 4. हम भजन संहिता 78 वचन 4 में इसके बारे में देख सकते हैं। It says, we will not hide them from our children, showing to generations to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done. ये कहता है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। And verse 10 says, वचन 10 कहता है, they kept not the covenant of God, but they refused to walk in His law. उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। And it verse 11 says, and they forgot His works and all the wonders that He had shown them. वचन 11 कहता है, उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे See, उनको human भुला memory दिया। is so deceptive and so you can't rely on it. देखिए, मनुष्य जो है वो तो इतना धोखा देने वाला है कि आप उस पर आधारित नहीं रह सकते हैं। In spite of seeing all the great things God had done, परमेश्वर ने ये सब जो महान काम किए, ये सब कुछ देखने के they said, बाद oh yeah, He provided water from the rock, but can He give us bread? तो उन्होंने कहा, चट्टान में से हमें पानी दिया, लेकिन क्या वो हमें रोटी दे सकता है? इस तरह से कहा। Oh, He defeated all those other Amorites and the king, but can He take us to the promised land? ओ, उसने अमोरी और दूसरे राजाओं को हराया, लेकिन क्या वो हमें प्रतिज्ञा के देश में ले जा सकता है? इस तरह से कहा। They forgot His greatness. वो उसकी महानता को भूल गए थे। God who parted the water and made them walk on dry land in the middle of the water, they forgot His greatness. उस परमेश्वर ने जिसने समुद्र को दो भाग में विभाजित किया और समुद्र के बीच में उसने सूखी जमीन में से उन्हें पार ले गया, उस परमेश्वर को वो भूल गए। When we forget the things of God, जब हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते we हैं, forget God's blessings, जब हम परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते when हैं, we start grumbling and complaining and we forget His blessings, और जब हम शिकायत करने, कुड़कुड़ाने लगते हैं और उसके आशीषों को हम भूल जाते हैं, जब हम ऐसा करते हैं, a dryness comes into your soul. तो आपके प्राण में मानो एक सूखापन आ जाता है। Curses will come upon you, आपके जीवन के ऊपर में श्राप आने लगते हैं, and God's blessing and favor will cease in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और कृपा मानो बंद हो जाती है। Psalms chapter 106 verse 13 to 15, भजन संहिता 106 वचन 13 से 15 में हम इस तरह से देख सकते हैं। it says about the same children of Israel who came out of Egypt. ये इस्राएली लोगों के बारे में कहता है जो कि मिस्र में से बाहर आए थे। It says they soon forgot His works and they waited not for His counsel. और ये कहता है कि जल्दी ही वो उसके वचन को भूल गए और उसकी सलाह के लिए उन्होंने राह नहीं देखी। Verse 14 says, and they lusted exceedingly in the wilderness and tempted God in the desert. और वचन 15 कहता है कि उन्होंने जंगल में बहुत अभिलाषा की और जंगल में It परमेश्वर की says in verse परीक्षा की। 15, and He gave them the request, but He sent leanness or dryness into their soul. परमेश्वर ने उनकी विनती तो पूरी की, लेकिन उनके प्राण को पूरी तरह से सुखा दिया। उनके प्राण को उसने पूरी तरह से सुखा दिया। When you forget the things that God has done for you, जो परमेश्वर ने आपके लिए किया, अगर आप उसे भूल जाते हैं you are ungrateful. तो आप उसके आभारी नहीं होते हैं। He has done so many things for you. उसने आपके लिए बहुत कुछ किया He has है। kept you from so many dangers in your life. उसने आपके जीवन में बहुत से खतरे से आपको बचाया है। He has given you a good family. उसने आपको अच्छा परिवार दिया You है। have good health. आपके पास अच्छी तंदुरुस्ती You है। have work to do. आपके पास करने के लिए काम है। Every day His blessings are upon you. हर एक दिन उसकी जो आशीष है वो तो आपके ऊपर में बनी Even the है। sun that shines upon you, that's a blessing from God. सूरज की रोशनी जो आपको मिलती है वो तो सच में परमेश्वर की आशीष ही है।
The air that you breathe is a blessing from God. हर एक श्वास जो आप लेते हैं ये तो परमेश्वर की आशीष ही है। Everything is a blessing. हर एक चीज आशीष है। We should not forget His blessing. हमें उसके आशीषों को नहीं भूलना When He has चाहिए। forgiven your sins, that's a great blessing from God. उसने आपके पापों को क्षमा किया, ये तो परमेश्वर की ओर से महान आशीष है, बड़ी आशीष है। You keep thanking Him for what He has done for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ किया, क्या आप उसके लिए उसका धन्यवाद करते चली जाती You हैं? remember all His goodness towards you. आपके लिए उसकी जो सारी भलाई है, क्या आप उसे स्मरण करते चले जाते हैं? We should learn to make it a habit of being grateful to Him every day. हमें प्रतिदिन उसके आभारी होने की आदत को सीखते चले जाना होगा। We wake up and say, Lord, thank you for this new day. जब आप सुबह के समय जागते हैं तो आपको परमेश्वर से कहना होगा, परमेश्वर इस नए दिन के लिए धन्यवाद। Throughout the day, you keep thanking Him for watching over you. और आपकी निगरानी करने के लिए पूरे दिन भर आप उसे धन्यवाद देते चले जाएं। Thank Him for the health you have. आपके पास जो तंदुरुस्ती है उसके लिए धन्यवाद दे। Thank Him for the food He has given you. उसने आपको जो भोजन दिया उसके लिए धन्यवाद दे। Don't think that you have earned your food because of your own abilities. आप ये न सोचे कि आपने अपनी योग्यता के कारण अपना भोजन कमाया हुआ है। God has given you the wisdom and the ability to earn that. परमेश्वर ने आपको बुद्धि और योग्यता दी है कि आप इन सारी बातों को कमाते जाएं। His blessings upon you, that's why everything is going well. उसकी आशीषें आप पर है, इसीलिए सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से हो रहा To है। thank Him. आपको उसे धन्यवाद देना है। Thank Him for your children. अपने बच्चों के लिए उसे धन्यवाद दे। Thank Him for your spouse. अपने जीवन साथी के लिए उसे धन्यवाद दे। In everything, give thanks. हर बात में उसे धन्यवाद देते चले जाएं। This is God's will for you. ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, But we tend to forget. लेकिन हम भूल जाते हैं। That's why God says, put those stones as a memorial and tell your children this is what God did in their life. और इसलिए परमेश्वर कहता है इन पत्थरों को स्मरण के रूप में वहां पर रखना और अपने बच्चों को बताना कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये किया है। इस तरह से अपनी At अगली least पीढ़ी the को second बताना। generation will not forget my works like what the first generation did. और इस कारण जैसे पहली पीढ़ी भूल गई थी, दूसरी पीढ़ी मेरे कामों को कभी नहीं भूल पाएगी, ये उसने कहा। We sing a song, a hymn. हम एक गीत गाते हैं, Count your blessings, name them one by one. अपनी आशीषों को गिनो और एक एक करके उसे नाम देते चले जाओ। It will surprise you what God has done. परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, इसे जानकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। How many of us keep thanking God every day for what He has done? परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए हम में से कितने लोग प्रतिदिन उसे धन्यवाद देते चले जाते हैं। A person who has a grateful heart, God loves to answer that person. ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय आभार से भरा है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को उत्तर देना बहुत पसंद करता है। The Bible says in 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में बाइबल इस तरह से कहती है, Paul says, don't be like our forefathers who were grumbling in the wilderness. पौलुस कहता है कि हमारे पूर्वजों के जैसे ना हो जो कि वहां पर जंगल में कुड़कुड़ा रहे They were थे। all cast down. वो सब नीचे गिरा दिए गए, They fell वो नीचे गिर गए। because of the grumbling nature. उनके कुड़कुड़ाने के स्वभाव के कारण ही वो नीचे गिर गए। When we come to difficult times in our life, और जब हम अपने जीवन में मुश्किल समय में आते हैं look back तो पीछे मुड़कर देखिए and see the blessings of God in your life. और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखते चले जाएं। Start thanking Him for one by one, start thanking Him. एक एक करके हर बात के लिए उसे धन्यवाद देते चले And जाएं। you'll find that, hey, this is nothing. This I can also, God is going to take me through this also. और निश्चय जल्दी आप पाएंगे कि अरे ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर इन सारी मुसीबतों से भी मुझे निकाल लेगा। इस तरह से आप सोचते चले When you start जाएंगे। worshiping and thanking a song, I mean, your heart will be lifted up. और जब आप उसकी आराधना करते चले जाएंगे, धन्यवाद देंगे, तो आपका जो दिल है वो उभर कर आएगा। आपका जो दिल है वो हौसला प्राप्त करेगा। Why we struggle through problems is because we have a grumbling attitude. हम क्यों समस्याओं में मुश्किल का सामना करते हैं? क्योंकि हमारा कुड़कुड़ाने का स्वभाव होता है, ऐसी हमारी मनोदशा होती है। You will learn how to thank Him when you know that God knows everything. जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर सब कुछ जानता है तो निश्चय आप उसे धन्यवाद देना सीखेंगे। He knows why the situation came into your life. वो जानता है कि ये परिस्थिति आपके जीवन में क्यों आई है। And if you are a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, everything that happens to you is for a purpose. तो आपके साथ में जो कुछ भी होता है उसका एक उद्देश्य होता है। No accidents take place. कोई भी ऐसी अकस्मात नहीं होता है। God allows things to happen to you. परमेश्वर आपके साथ ये सब कुछ होने देता है। And even the hard times is a blessing for you. और यहाँ तक कि मुश्किल समय जो है वो तो आपके लिए आशीष You का will कारण है। realize it after you go through what it a blessing it was. और जब आप उसमें से होकर पार जाते हैं तभी जानते हैं कि ये कितने आशीष की बात रही है। So it's better to go through every situation thanking Him और इसलिए हर परिस्थिति में उसे धन्यवाद देते हुए उन परिस्थिति से जाना अच्छा है, instead of grumbling and going through it.
और कुड़कुड़ाते हुए उसमें से जाने के बजाय उसे धन्यवाद देते चले जाएं। Learn to how to bless the Lord with all that you have. आपके पास जो कुछ भी है उसके द्वारा कैसे परमेश्वर को हम धन्य कहते जाइए, आप सीखते चले See जाएं। what the Bible says in Psalm 103 verse 1 to 5. भजन संहिता 103 वचन 1 से 5 में बाइबल क्या कहती है, देखिए। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को न भूलना। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण God है। wants us to remember his goodness. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भलाई को स्मरण करते जाएं। And when you remember the past goodness that he has shown you, your faith will increase for the future. भूतकाल में परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी भलाई की है उसे आप स्मरण करते जाएंगे तो भविष्य में निश्चय उस पर विश्वास करने में आप बढ़ते चले जाएंगे। You will realize that the same God who was with you in the past is with you forever. और आप इस बात को जानेंगे कि ये परमेश्वर जो भूतकाल में आपके साथ में रहा है वो सदा सदा आपके साथ The में God who रहेगा। did miracles in your past will do the same miracles in the future also. परमेश्वर जिसने आपके भूतकाल में चमत्कार किया है वो आपके भविष्य में भी आपके लिए चमत्कार करता चला जाएगा, महान चमत्कार करेगा। Because he promised, I'm with you forever. I'm with you till the end of the age. I'm with you. क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं सदा के लिए तुम्हारे साथ में हूँ, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। He said, I will never leave you nor forsake. उसने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। So when you remember his blessings in the past, it will give you strength to go through the tough time. जब आप भूतकाल की उसकी आशीषों को याद करेंगे तो ये आपको बल देगा कि आप जीवन में मुश्किल समय में से आगे बढ़ते चले जाएं। ये आपको हिम्मत देता चला And जाएगा। verse 3 says, who forgives all your iniquities and heals all your diseases. वचन 3 कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Who redeems your life from destruction and who crowns you with loving kindness and tender mercies. वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। We don't realize how many times we escape destruction on our roads. हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हम अपने सड़कों पर कितनी तो भी बार विनाश से बचे हुए हैं। We don't realize how many plagues and diseases God has kept away from us. हम इस बात को भी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितनी मरी से और कितनी भयानक बीमारियों से बचा कर रखा हुआ है। People die of cancer and so many terrible diseases every day. प्रतिदिन लोग कैंसर और भयानक ऐसी बीमारियों से मरते चले जाते हैं। That's what he says, who heals you of all your diseases. और यही तो ये कहता है कि वही तो तुम्हारे सारे रोगों से तुम्हें चंगाई देता है। Crowns you with his loving kindness and tender mercies. वो आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, इस तरह से ये कहता है। Verse 5 says, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagle. वचन 5 कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। God has been so merciful to us. परमेश्वर हम पर बहुत ही दयालु रहा है। He has forgiven us of our sins. उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। He has given you hope of heaven. उसने आपको स्वर्ग की आशा दी है He has written our names in the book of life. और उसने जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा हुआ है। The angels know you. स्वर्गदूत आपको जानते हैं, They know you by your name. वो आपके नाम से आपको जानते हैं। God loves you so much. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है Because you have turned away from the world and given your life to him. He loves you. क्योंकि आप संसार से फिरकर अपना जीवन उसे दे चुके हैं, इसलिए वो आपसे प्रेम करता है। Learn to bless the Lord with every day of your life. अपने जीवन के प्रतिदिन उसे धन्यवाद देना आप सीखते चले जाएं। Remember his goodness. उसकी भलाई को स्मरण कीजिए। Remember his kindness towards you. आपके लिए उसकी जो करुणा है उसे आप स्मरण करते चले How जाएं। many times he has answered your prayer. कई बार उसने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। Keep a note and write it down. All the answered prayers, write it down in a book. आप उसे लिख ले, एक किताब को लेकर आपने जो प्रार्थनाओं का जवाब पाया उन प्रार्थनाओं के बारे में लिख ले And keep thanking God for his answers. और उसके जवाब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं। We always, when a problem comes, immediately forget all that he has done and start complaining. देखिए, हम हमेशा जब भी समस्या आती है तो जो कुछ उसने किया उसे भूल जाते हैं और हम शिकायत करने Best लगते way to हैं। go through problems is remember the past. और समस्या से जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने भूतकाल को याद करते जाएं, भूतकाल की आशीषों को स्मरण करें। Remember a God who has blessed you in the past. याद रखिए, उस परमेश्वर ने आपको भूतकाल में आशीष दी है And you'll have the strength to go through the problem. और आपके पास में बल होगा कि आप इन समस्याओं में से होकर पार चले जाएं, Because you know क्योंकि आप जानते हैं that the God who has blessed you in the past will bless you even in this time also. कि जिस परमेश्वर ने आपको भूतकाल में आशीष दी है वही परमेश्वर इस समय भी आपको आशीष देगा। There were times I had gone through where I didn't understand why things were happening. ऐसा समय था जिसमें से मैं होकर गया, उस समय मैं नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है। I was disturbed in my mind. मैं अपने मन में बहुत ही परेशान हो गया था, But one thing I held on to. लेकिन एक बात को मैं थामे रहा। I said, Lord, you're a good God. मैंने कहा, परमेश्वर तू भला परमेश्वर Your है, plans for me are good. मेरे लिए
लिए तेरी जो योजनाएं हैं वो तो भलाई की ही योजनाएं Your हैं। thoughts for me are good. मेरे लिए तेरे जो विचार हैं वो तो केवल भलाई के ही I हैं। don't understand why this is happening. मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, But I thank you because you know what's happening. लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू जानता है कि क्या I हो रहा know है। that when I come through this, I will understand your blessings, your love. और मैं जानता हूँ जब मैं इसमें से पार चले जाऊंगा तब तेरी आशीष और तेरे प्रेम को मैं समझ पाऊंगा। इस तरह से मैंने उससे कहा। And when that situation passed, और जब वो परिस्थिति चली गई, वो परिस्थिति बीत then गई, I realized, hey, that's why God allowed this to happen. और तब मैंने जाना कि हाँ, इसी कारण परमेश्वर ने इन सारी बातों को मेरे जीवन में होने दिया। And my gratitude increased towards और God. परमेश्वर की जो सराहना और आभार था मेरे मन में, वो बढ़ता चला Make it a गया। habit to remember what God has done. परमेश्वर ने जो कुछ किया उसे याद करने की आप आदत डाल दें। Don't forget His benefits. उसके जो लाभ है, उत्तम कामों का आप न भूलें। Start with your forgiveness and start praising Him for what He has done for you. आपको क्षमा किया इसलिए आप शुरुआत कीजिए और निश्चय जो आशीष आपने दी उसके लिए धन्यवाद देते जाएं। Start praising Him for the hope He has given you. उसने आपको जो आशा दी है उसके लिए उसकी स्तुति करते चले जाएं। Start praising Him for the angels of God who are with you. परमेश्वर के स्वर्गदूत जो आपके साथ में, उसके लिए उसकी स्तुति करते Start जाएं। praising Him for the Spirit of God that He has given to live inside of you. उसने परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करने के लिए दी है, इसलिए धन्यवाद करते जाएं। Count your blessings, name them one by one. अपनी आशीषों को गिने, एक एक करके उसका नाम देते चले जाएं। And you will be surprised at what God has done. और आपके लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है उससे आप चौंक जाएंगे। I ask you one thing. मैं आपसे एक बात पूछता Have हूँ, you received the greatest blessing? क्या आपने सबसे महान आशीष को पाया है? What is the greatest blessing? सबसे महान आशीष क्या है? It says in Psalm 103, verse 3 says, who forgives all your iniquities and heals all your diseases. भजन संहिता 103 वचन 3 में ये कहता है कि वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Have you received that great blessing from God? क्या आपने परमेश्वर की ओर से इस महान आशीष को प्राप्त किया है? Freely offers it to you. ये आपको वो मुफ्त में देता है। Forgiveness of all your sins. आपके सारे पापों की क्षमा करता है। Whatever you have done, आपने जो भी किया है, if you come in true repentance, अगर आप सच्चे मन फिराव और पश्चाताप के साथ में आते हैं, God is so merciful that He'll forgive you. परमेश्वर इतना दयालु है कि वो आपको क्षमा कर देगा। Because He sent His only Son, Jesus Christ, to pay the price for that sin that you committed. क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि आपने जो पाप किया है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जान You दे। experience that forgiveness. जब आप उस क्षमा का अनुभव करते हैं, You can start blessing the Lord yourself. तो आप खुद परमेश्वर को धन्य कहना शुरू कर सकते हैं। You will start experiencing His mercy day by day in your life. और आप अपने जीवन में प्रतिदिन उसकी दया का अनुभव करते चले जाएंगे। He will be a father unto you. वो तो आपके लिए पिता हो जाएगा। And like a father pities his own children, God will pity you and have mercy और upon you. जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं, वैसे परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा और आपके लिए आशीष उंडेलेगा। If you have not done it, if you have not received that blessing till now, अगर आपने अब तक इस आशीष को प्राप्त नहीं किया है, I invite you today. तो आज मैं आपको न्योता देता हूँ। Come to know this God who is so merciful. Come to know इस Him. परमेश्वर को जाने जो कि बहुत ही दयालु है, बहुत ही अनुग्रहकारी है। Come to know this God who loves you, इस परमेश्वर को जाने जो आपसे प्रेम करता है। who was willing to send His Son to the cross to die for your sins. उसने अपनी इच्छा से आपके पापों के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा था। How do you come to know Him? और आप उसे कैसे जानेंगे? You invite Him into your life. आप उसे अपने जीवन में न्योता दें। You repent of your sins. आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए Turn away from the old ways. और पुराने मार्गों से आप पूरी तरह से फिर जाएं। Ask Him to come into your life. और आप उससे कहें कि वो आपके जीवन में You आए। invite Him, He will come. अगर आप उसे न्योता दे तो वो निश्चय ही आएगा। If you want to do it now, अगर इसे अभी करना चाहते हैं do it with me. तो मेरे साथ में प्रार्थना I pray. करें। मेरे साथ प्रार्थना Pray with कीजिए। me. मेरे साथ But में with जुड़िए। sincerity, बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना God will कीजिए। hear your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। Will you pray with me? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। I believe that you loved me so much that you went to the cross to pay the price for my मैं sins. विश्वास करता हूँ कि तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे पापों के लिए दाम चुकाने के लिए तू क्रूस पर चला गया। I believe you died on the cross to pay for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि तू क्रूस पर मेरे पापों के लिए दाम चुकाने के लिए मरा। And I believe you rose again on the third day. और मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन फिर से जी उठा। Wash me in your precious blood. मुझे अपने बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध कर। Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। From today I turn to you. आज से मैं तेरी ओर फिरता हूँ। I turn away from my old ways. मैं अपने पुराने मार्गों से फिर जाता हूँ। I ask you to be my master. और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरा स्वामी हो जा। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। Father, I pray for those who are sick. पिता, मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I rebuke that sickness in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में उस बीमारी को डांटता हूँ।
Every cancer, every disease, I rebuke it in Jesus' name. हर एक कैंसर, हर एक बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम में अभी डांटता हूँ। Every mental illness, I rebuke it in Jesus' name. हर एक दिमागी बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय डांटता हूँ। Demonic oppression, I command you to leave in Jesus' name. दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो सताया जाना, मैं अभी इसी समय आज्ञा देता हूँ कि ये दूर हो जाएं। I break the power of addictions in the name of Jesus. मैं बुरी लतों की सामर्थ को यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय तोड़ देता हूँ। Be free in Jesus' name. यीशु के नाम में आजाद हो जाए। I pray this in Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे And remember, और याद रखिए, remember all the blessings of God day by day. Thank Him for it. प्रतिदिन परमेश्वर की सारी आशीषों को आप याद करते जाएं, उसे धन्यवाद देते चली जाएं। Throughout your life, पूरे जीवन भर have an attitude of gratitude to Him. परमेश्वर के लिए सराहना की भावना रखते चली जाएं। God loves the people who thank Him always. He loves them. जो लोग परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है। Learn to be grateful. आप आभारी होना सीख ले। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।